So this is about the role of good and the bad karma in deciding our destiny. Okay. तो हम लोग इसमें से जो कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स है उसको समझने का कोशिश कर लेंगे. See why this topic is relevant to all of us. You see, we find ना in this world, you know, like यहाँ पे पिक्चर में दिखा रखा है, देखो. आप देखेंगे कि इस वर्ल्ड में बहुत सारे डिफरेंसेस हमको दिखाई देते हैं, right? Some people are born very very wealthy, like somebody is born into Tata, Birla, Bill Gates family. Okay. Somebody on the other hand, we find that they are very poor. They are having hard struggle even to arrange food for even even to arrange one meal. Then there are people who are very very handsome. On the contrary, we find that some people are born very very ugly. Some people are born very healthy. Some people are always very diseased, weak, handicapped. Some are able to be very nicely educated and all. Others are, they have to go through illiteracy. तो हम देखेंगे कि इस वर्ल्ड में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंसेस हमको दिखाई देते हैं, राइट ना. So naturally the question is that why do these differences appear, why not everything is happening the same way, which means what, why not everyone is born wealthy, or why not everyone is born as very intelligent like we find Albert Einstein, or why do we find that not everyone is the same way handsome. So why this differences is there, these differences shows that there is some power which is controlling all these differences. So what is the basis of that power? So our Shastras explained that that power is called as the law of karma, the law which governs all these things, that is called as the law of karma. इसको ये भी बोलते हैं law of action and reaction, which we know. So what is this law of karma and all, we will just try to briefly understand from this presentation. Okay. तो सीधे यहाँ पे सबसे पहले बता रखा है कि what is karma. Okay. आप में से कोई पढ़ेगा इस पूरे पैराग्राफ को? Any of you? Yeah, Shivansh, please. When the living entity is in material consciousness, he has to take on various bodies in the material world. This is called karma, on varied creation by the force of material consciousness. The living entity, Jivatma, takes different positions. Sometimes he merges into the dark material nature and identifies himself with matter. And sometimes he identifies himself with the superior spiritual nature. Therefore, he is called the Supreme Lord's marginal energy. According to his identification with material or spiritual nature, he receives a material or spiritual body. In material nature, he may take a body from any of the 84 lakh species of life, but in spiritual nature, he has only one body. In material nature, he is manifested sometimes as a man, demigod, animal, beast, bird, etc., according to his karma. This process is called karma. For example, a kid enjoys a tricycle, a schoolboy uses a bicycle, a college boy uses a bike, and a company going man uses a car. For purchasing these vehicles, one requires money. Similarly, it is not enough for us to have a desire to get something, we also need to deserve that. The paying price to get what we desire is called karma. Similarly, the soul accepts various bodily vehicles as per his good and bad karmas. So karma is what basically? Karma क्या होता है? जो भी हम लोग एक्टिविटीज करते हैं ना, उसकी जो रिएक्शंस होती हैं उसको कर्मा बोलते हैं. समझ में आप लोगों को? जैसे मैंने कुछ भी एक्टिविटी किया, सपोज मैंने कुछ चैरिटी दिया, कुछ दान पुण्य किया, या फिर मैंने सपोज कोई भी एक्टिविटी किया, मैंने फॉर एग्जांपल लाइक मैं एजुकेट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स लोगों को, तो ये सारी जो हम एक्टिविटीज करते हैं उन सबके लिए कुछ ना कुछ रिएक्शंस बनाई गई हैं भगवान के द्वारा, तो उसी को बोलते हैं कर्मा. जो एक्टिविटीज हम करते हैं उसी को बोलते हैं कर्मा, और उनका जो रिएक्शन आता है उसको भी कर्मा बोलते हैं. समझ में आपको? तो आप एग्जांपल दे रखे हैं कि कैसे, फॉर एग्जांपल लाइक अलग अलग लोगों को अलग अलग बॉडीज मिली हुई हैं. किसी को कैट का बॉडी मिला है, किसी को डॉग का बॉडी मिला है, किसी को ह्यूमन बीइंग का बॉडी मिला है. ये सब भी क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ अवर कर्मा, विच मीन्स व्हाट, बिकॉज ऑफ द रिएक्शंस ऑफ एक्टिविटीज व्हिच वी हैव डन इन पास्ट. To give you one example, like suppose somebody has led a very pious life. अगर किसी ने बहुत दान पुण्य किया है पुराने जन्म में, बहुत अच्छे से किया, तो उसको इस जीवन में क्या होगा? Like somebody is born into the big family ना, बताते हैं भगवत गीता में. अगर कोई व्यक्ति बहुत जैसे अमीर खानदान में पैदा हुआ है ना, इसका मतलब है कि उसने पुराने जन्म में कुछ अच्छे पुण्य किए होंगे. इसलिए ऐसा बताया गया. जैसे मान लो अगर आपने इस जन्म में किसी गरीबों को खाना वाना खिलाया, तो अगले जन्म में क्या होगा कि आपको खाने पीने की कोई कमी नहीं आएगी. लाइक दैट तो somebody is born into a good family, which means what, he has a good karma with him. तो उसको कर्मा बोलते हैं. कर्मा मतलब जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं उसकी जो रिएक्शंस होती है उसको कर्मा बोला जाता है. ओके.
तो एज पर हमारा जो कर्मा होता है उसके हिसाब से हमको बॉडीज मिलती है, अलग अलग बॉडीज भी मिलती है, राइट? किसी को कैट का बॉडी मिला है, किसी को ट्री का बॉडी मिला है, ये सब क्यों मिला है? बिकॉज ऑफ देयर कर्मा, डिफरेंट डिफरेंट कर्मास, इसलिए डिफरेंसेस है, बेस्ड अपॉन अवर डिजायर्स, किस तरीके के डिजायर्स हम कल्टीवेट करते हैं, स्पेशली ह्यूमन फॉर्म है ना, ह्यूमन फॉर्म में बस हम लोग डिजायर कर सकते हैं। बाकी फॉर्म्स में आप देखोगे, मींस ओनली इन द ह्यूमन फॉर्म वी हैव अ मोर एक्सेस टू अवर फ्री विल। जो बाकी लोअर स्पीशीज होती हैं एनिमल्स वाली, बर्ड्स में, उसमें हम अपनी फ्री विल को ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, which means what, other species are more or less they are like the program version, but human form में क्या है कि हमारे पास में फ्री विल हम अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं, कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, that we can decide. On the contrary, in the lower forms like in the animal body or the plant's body, we don't have much access to our free will. It's like a default thing which we have to go through it. For example, like suppose किसको लायन का बॉडी मिला है, तो अभी लायन का बॉडी मिला है मतलब he has to go for eating of the meat, he has to go for hunting, he does not have a choice, it is like a programmed thing which is being done, इसलिए जो ये जो रिएक्शंस मिलती है वो सिर्फ हमको ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में मिलती है। तो हमको जैसे ह्यूमन बॉडी मिला, इसमें हमने जो भी एक्टिविटीज किया उसके बेसिस पे ही हमको आगे की जो बॉडीज है वो मिलने वाली है। फॉर एग्जाम्पल लाइक मैंने सपोज बहुत सारे जानवरों को अगर मैंने मारा, तो अभी आगे बहुत सारे मुझे स्पीशीज में घूमना पड़ेगा। लेकिन जैसे लायन है, अगर लायन किसी एनिमल को हंट कर रहा है तो लायन को कोई कर्मा नहीं लगता उसका, because he is not breaking the laws of nature. The laws of nature has made it system like this that lion has to eat the other living entities. So lion does not get any karma. But we human beings, because we have a free will, we can exercise our free will, we get the karma. Okay, so this is about the karma concept यहाँ पे बता रखा है। Okay, तो यहाँ पे देखो बता रखा है, similarly the soul accepts the various bodily vehicles as per his good or bad karma. हमारे कर्मा के हिसाब से हमको अच्छी बॉडी मिलती है, बुरी बॉडीज मिलती है, या फिर अच्छे कंडीशंस मिलती है, फिर बुरी कंडीशंस मिलती है, वो सब हमारे कर्मा के हिसाब से होता है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द गुड एंड द बैड कर्मा। ओके, तो यहाँ पे वही बता रखा है कैसे, अगर कोई व्यक्ति के पास में अच्छा वेल्दी बॉडी है, स्मार्ट बॉडी है, इसका मतलब है कि उसका अच्छा कर्मा रहा है। और किसी को अगर सपोज वो सब कुछ अगर इम्प्रॉपर बॉडी मिला है, जैसे हम देखते हैं ना कई लोगों का हाथ नहीं होता है, बचपन से पाँव नहीं होता है, इसका मतलब है कि उनका कुछ प्रीवियस कर्मा बैड है, इसलिए उनको इस तरीके का बॉडी मिलता है। ओके, तो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे लास्ट में बता रखा है कि गुड कर्मा इज लाइक अ क्रेडिट इन द अकाउंट एंड बैड कर्मा इज अ डेबिट। At the time of death, the plans of the souls are stored within the mind, and by the help of the higher order, natural laws involving karma, the soul gets the facility to give these plans shape in the next life in a suitable bodily form. तो हम जो भी अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, वो सब स्टोर होते हैं और उनके बेसिस पे हमको अपना नेक्स्ट बॉडी मिलता है बाय द नेचर, तो दिस वाज अबाउट गुड कर्मा। तो कुछ अच्छी चीजें हैं, अच्छी एक्टिविटीज हैं, और कुछ बैड कर्मा जो हम करते हैं ना। अच्छी एक्टिविटीज किनको बोलेंगे? जो जैसे शास्त्रास में दे रखी हैं। फॉर एग्जाम्पल एक शास्त्रास में बता रखा है कि कैसे हम लोगों को चैरिटेबल होना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, दूसरों का भला करना चाहिए, तो ये सारी अच्छी एक्टिविटीज बता रखी हैं। अगर हम वो करेंगे तो उसके कारण हमको अच्छा क्रेडिट मिलेगा। और अगर हम लोग बैड एक्टिविटीज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फोटो में दिखा रखा है ना, somebody is engaging into intoxication, gambling, illicit sex, तो देन उसके लिए बैड कर्मा उसको करना पड़ेगा, तो दैट इज लाइक अ डेबिट। तो दोनों केस में इसको बोलते हैं बैड कर्मा। ओके, so basically breaking of the laws of the nature, that is called as a bad karma, and following the laws of the nature, that is called as a good karma. Okay, तो this was about karma, then we had a good and bad karma, जिसको पाप एंड पुण्य भी बोलते हैं ना, पाप एक्टिविटीज एंड पुण्य एक्टिविटीज। और इसके बियॉन्ड एक होता है, उसको बोलते हैं अकर्मा, या फिर जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। ओके, आप में से कोई पढ़ेगा इसको, अकर्मा? Yes, sir. Yes, Amit, please read. A karma refers to a spiritual activity performed on behalf of Supreme Lord or for pleasing the Lord. Some examples of a karma activities are the actions performed to please the Supreme Lord: chanting Hare Krishna, Navavida Bhakti, ninefold method of devotion service, and rendering various types of services for Lord's praise, like cooking, preaching, gardening, painting, singing, and other similar acts of bhakti. One develops devotion for the Lord, detachment from the worldly affairs, purity, and spiritual happiness. Since the person from whom the service is performed is Krishna, the supremely pure, a karma liberates one from the cycle of birth and death. Thus, true love of God and takes one back to the spiritual world. Bhakti Yoga directs towards the spiritual Lord, Supreme Lord, as performed by Arjuna, Hanuman, Pandavas, etc., produces divine credits called a karma, which take one back up to
Godhead when it is purely right. हाँ, तो अकर्मा क्या होता है? ऐसी एक्टिविटीज जो हम करते हैं जिसके लिए हमको कुछ बैड या गुड रिएक्शंस नहीं मिलता है, उसको बोलते हैं अकर्मा। अकर्मा मतलब कि जिसके साथ कुछ रिएक्शंस नहीं आ रही हैं, ओके। और वो कौन सी एक्टिविटीज होती है? जो भी एक्टिविटीज हम भगवान के प्लेजर के लिए करते हैं उसको अकर्मा बोलते हैं ना। आई विल गिव वन एग्जांपल व्हिच विल मेक इट वेरी क्लियर, ओके। नाउ वी सी द बैटल ऑफ दिस कुरुक्षेत्र वाज देयर, राइट? So now let us see. There were Kauravas, Duryodhana and all. There were Kauravas, then there were Pandavas, and yeah, let us say there was Pandavas, or let us say Arjuna, and there was Duryodhana and the Kauravas. Okay, now देखो दोनों ने क्या किया? अर्जुना ने क्या किया, पांडवास ने क्या किया? लड़ाई किया ना, फाइटिंग किया, ओके। और दुर्योधना एंड पार्टी कौरवास उन्होंने भी फाइटिंग किया, ओके। तो नाउ यू सी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक फाइटिंग, लड़ाई वड़ाई करना। ये बताओ ये क्या है? अच्छा कर्म है या अच्छी चीज है या बुरी चीज है? बताओ, इज इट अ गुड? लड़ाई झगड़ा करने से, मारकाट करने से क्या मिलना चाहिए? अच्छे, विल इट बी कॉल्ड अ गुड कर्मा और बैड कर्मा? व्हाट डू यू से जनरली? बैड कर्मा। बैड कर्मा, राइट? राइट। अभी यहाँ पे भी बाहर कोई मान लो कोई लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, तो उसको बैड कर्मा ही माना जाएगा ना। तो बैड बोला गया क्योंकि शास्त्र बोलते हैं कि नहीं, एक दूसरे को मारकाट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो in general, fighting, if you see as an activity, fighting is a bad activity which will give us bad karma, okay? It's a bad activity, okay? Bad karma wali activity hai. Now let us talk about this case now, now let us talk about the Kauravas. Kauravas ने भी लड़ाई किया, okay? तो उनका जो लड़ाई करना था वो क्या रहेगा? Will it be a good karma or bad? See, now Kauravas are, they are Kshatriyas. Kshatriyas means they are supposed to fight, okay? Now Kauravas का fighting करना, was it a good karma or bad karma? What do you say? कौरवास का लड़ाई करना बैड, ओके। व्हाई इट वाज बैड? बिकॉज़ मतलब श्री कृष्ण ने तो बोला था कि नहीं मतलब लड़ाई ना करो शायद ऐसा। या वन थिंग इज दैट बिकॉज़ कृष्णा डिडंट वांटेड टू हैव इट, राइट? दैट इज वन थिंग। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसे आप डिस्टिंग्विश करोगे कि ये सही है कि बैड है? देखो, जो भी चीजें धर्म के हिसाब से की जाती हैं वो गुड होती हैं, और जो धर्म के अगेंस्ट में की जाती है वो बैड होती है, राइट? तो नाउ कौरवास, दे वर हैविंग दिस फाइट, व्हाई? बिकॉज़ दे वर वेरी ग्रीडी, they were not ready to give the kingdom to the Pandavas, right? So because they were acting out of irreligion, they were acting out of the adharma, इसलिए उन्होंने फाइटिंग जो किया वो बैड था। Why? Because they were acting out of the greed, they were not ready to give any kingdom to the Pandavas and all, इसलिए वो बैड कर्मा था। Because although they were Kshatriyas, Kshatriyas were supposed to fight, but because they were fighting for the sake of their greed, it was a bad karma which they did, okay? Now let us talk about this thing, Pandavas. Let us talk about the Pandavas. अब मुझे बात बताओ, पांडवास ने भी लड़ाई किया ना, फाइटिंग ही किया उन्होंने भी। हमने डिस्कस किया, देखो पहले फाइटिंग इन जनरल इट्स अ बैड एक्टिविटी, राइट? किलिंग ऑफ द पीपल एंड ऑल, इट्स अ बैड एक्टिविटी, ओके। नाउ कौरवास का फिर हमने डिस्कस किया, कौरवास के लिए भी वो बैड एक्टिविटी है। क्यों एक्टिविटी है? क्योंकि दे वर डूइंग इट आउट ऑफ देयर ग्रीड, ओके। इट वाज नॉट मेंट फॉर प्लीजिंग कृष्णा, इट वाज मेंट फॉर देयर ओन सेक। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द पांडवास एंड अर्जुना। व्हाट डू यू से? द फाइटिंग ऑफ द पांडवास, इज इट अ गुड कर्मा और इज इट अ अकर्मा और इज इट अ बैड कर्मा? तीन चीजें। The fighting of the Pandavas, is it a good karma, bad karma, or a karma? That is a spiritual activity. What do you say? You can answer and you can substantiate also why you are saying what. Sir, maybe we can say that it is a karma because indirectly तो भगवान ही ये पूरे विश्व को ये संदेश देना चाहते थे कि अंत में जीत धर्म की होती है। So one should stick to the path of dharma. Okay, someone else would like to say something? Or कोई point? अच्छा, any of you say that it was a bad karma is because they were also fighting, they were also killing people, na? Will the Pandavas be getting bad karma? What do you say? पाप लगेगा क्या पांडवास को भी? उन्होंने भी तो किलिंग किया ना, लोगों को मारा ना, उन्होंने भी तो सोल्जर्स को मारा, पाप लगेगा? सर पाप लगना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो कृष्णा की मर्जी से हुआ था तो इसलिए उनका जो पाप है वो कम कर दिया जाएगा क्योंकि वो फाइनली इन सर्विस टू कृष्णा था। ओके, गुड, फाइन। या एक्चुअली जो करेक्ट अंडरस्टैंडिंग है ना, जैसे आयुष ने बताया वही अंडरस्टैंडिंग है। देखो अब सी, हमने डिस्कस किया फाइटिंग इन जनरल इज अ बैड एक्टिविटी व्हिच विल गिव बैड कर्मा, बैड रिएक्शंस, ओके। नाउ Kauravas when they were doing fighting, because their purpose was, see, the most important thing is a purpose.
purpose decides whether it is going to be a good karma, bad karma, or this thing. Purpose be, and also like as per the Shastras, what is being told. So see, fighting in itself is, in general, fighting in general itself is a bad activity. Okay. Now, because Kauravas were doing for their own purpose, for the selfish purposes, that's why it was an adharma. इसलिए उनका fighting क्या है? It will lead to the bad results. It will lead to the bad karma. Okay. Now, in the case of the Pandavas, they were also doing the fighting, but because that fighting was the desire of Krishna, and they were doing it for the sake of Krishna only. They were not fighting for their own purpose of getting the kingdom and all. They were fighting because Krishna wanted that fight to happen. So because they were doing it for Krishna, it became a spiritual activity. And that's why the Pandavas are not going to get any reactions out of that. समझ में आ गया? तो ये है अकर्मा एक्टिविटी. अकर्मा एक्टिविटी मतलब कि जिसके लिए हमको कुछ रिएक्शंस नहीं मिलता है. To give another example, like जैसे हमने डिस्कस किया था ना, जैसे प्रसाद हम करते हैं, तो हम भी लॉर्ड ने जो बताया गीता में कि ये सब आइटम्स आप मुझको ऑफर कर सकते हैं, हम लोग इन आइटम्स को लेते हैं, कुक करते हैं और फिर उसको भगवान को ऑफर करते हैं. अगर आप भगवान को ऑफर नहीं करते हो तो उसमें कुछ रिएक्शंस रहेंगी, उसमें कुछ सिंफुल रिएक्शंस रहेंगी, राइट, क्योंकि उसमें बहुत सारा किलिंग इन्वॉल्व रहता है, राइट, बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स यूज होते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, और इवन जो प्लांट्स भी उनकी में भी लाइफ होती है, तो किलिंग इज सिंफुल. लेकिन जब हम भगवान को ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने ऐसा बताया, भगवान ऐसा ऑर्डर कर रहे हैं, भगवान को हम ऑफर कर रहे हैं, तो क्या होता है, वो रिएक्शंस खत्म हो जाती है. तो दैट्स व्हाई इट बिकम अ कर्मा. ओके, तो अकर्मा इज बेसिकली क्या है, जब भी हम भगवान के प्लेजर के लिए एक्टिविटीज करते हैं तो उसके लिए हमको कुछ रिएक्शंस नहीं मिलता है. देखो क्या है, अगर आप अच्छा क्रेडिट लोगे तो भी दिक्कत है, और बुरा क्रेडिट लोगे तो भी दिक्कत है इस वर्ल्ड में. अगर आप पाप एक्यूमुलेट करोगे वो भी अच्छा नहीं है, और पुण्य लोगे वो भी अच्छा नहीं है. आप में से कोई बता सकता है क्यों ऐसा है? पाप और पुण्य दोनों अच्छे नहीं है हमारे लिए. कैन यू टेल व्हाई? क्योंकि सर जब तक पाप और पुण्य हम मतलब करेंगे सर, तब तक स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं पहुंच पाएंगे. One, let us have a Hari Bol for Kartikeya. Hari Bol. Hari Bol. Yes, this is the main thing, आप अगर अच्छा पाप भी करेंगे या पुण्य करेंगे, दोनों को भोगना पड़ेगा आपको, और भोगने के लिए आपको इस मटेरियल वर्ल्ड में आना पड़ेगा. गेटिंग ना? तो इसलिए पाप और पुण्य के बियॉन्ड हमको जाना होता है. इट इज कॉल्ड एज द अकर्मा. अकर्मा मतलब कि जब हम सिर्फ भगवान के प्लेजर के लिए चीजें करते हैं, तो जो सारे जो रिजल्ट्स होते हैं वो सब भगवान को जब हम ऑफर करते हैं, देन इट बिकम्स अ अकर्मा. तो अगर हम हमारा पर्पस होना चाहिए कि हमारा पाप में दोनों खत्म होना चाहिए, तब फिर हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड जा पाएंगे. इवन अगर आपने बहुत सारा पुण्य भी कर रखा है तो भी आपको मटेरियल वर्ल्ड में आना पड़ेगा उस पुण्य को भोगने के लिए. गेटिंग ना? तो ये चीज यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है. दैट्स द मेन थिंग. सो व्हाट इज दैट अकर्मा? जो भी एक्टिविटीज हम भगवान के प्लेजर के लिए करते हैं, जो भगवान ने बताई है, जैसे चैंटिंग करना, जैसे हम सब वहाँ पे थे, आप सब थे, तो वी sang many kirtans, we did chanting, we had so many discussion also, we also took prasad and all. बट आपको पता है उस किसी चीज का हमको कुछ बैड रिजल्ट नहीं मिलता है या गुड कर्मा नहीं मिलता है, वो सब हमारे स्पेशल अकाउंट में जाता है. से एक है मटल अकाउंट. ये जो पाप और पुण्य, ये हमारा मटल अकाउंट ही है जो इस मटल वर्ल्ड में रहता है हमारे साथ में. लेकिन हमारा जो स्पिरिचुअल अकाउंट है वो क्या करता है, जब हम भक्ति करते हैं, स्पेशल एक्टिविटीज करते हैं, तो उससे हमारा स्पिरिचुअल अकाउंट बढ़ता है, स्पिरिचुअल क्रेडिट्स बढ़ते हैं. तो हम जो भी कीर्तन करते हैं, चैंटिंग करते हैं, या फिर सर्विस करते हैं, या फिर इवन जैसे अभी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, लाइक आई एम ट्राइंग टू गिव यू दिस सेशन एंड ऑल, वी आर ट्राइंग टू डिस्कस द स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर. दिस इज आल्सो एन एक्टिविटी फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा. दिस इज आल्सो अ कर्मा ओनली. इट इज आल्सो गोइंग टू हेल्प अस इंक्रीज आवर स्पिरिचुअल क्रेडिट्स. तो समझ में आपको? तो ये बता रखा है यहाँ पे, चैंटिंग हरे कृष्णा और द 9 मेथड्स ऑफ डिवोशन सर्विस में क्या था ना, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, ये सारे 9 प्रोसेस है जिससे कि हम भक्ति करते हैं. एंड उसके अलावा बाकी जो भी एक्टिविटीज है, कुकिंग, प्रीचिंग, गार्डनिंग, पेंटिंग, सब कुछ क्या है, दे आर ऑल पार्ट ऑफ भक्ति. And since the person for whom the service is performed is Krishna, a karma liberates one from the cycle of birth and death, bestows love of God, and takes one back to the spiritual world. तो जो अकर्मा होता है वो हमको स्पिरिचुअल वर्ल्ड लेके जाता है. इट्स लाइक फिनिशिंग ऑफ अवर बिजनेस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड. ओके, यहाँ तक समझ में आया सबको? अच्छा चलो मैं एग्जांपल पूछता हूँ. सर आप सब जैसे स्टडीज कर रहे हैं ना, ऑल ऑफ यू आर नाउ स्टडी इंजीनियरिंग नाउ. नाउ कैन यू टेल मी, स्टडिंग इंजीनियरिंग, यू आर स्टडिंग ऑफ इंजीनियरिंग, is it a good karma, bad karma, or a karma? What do you say? Good karma. So good karma. Good karma, okay. Kartikeya is saying good karma, okay. And anyone else? अच्छा, is it a bad karma? Surely bad karma नहीं बोला जाएगा. सर right? डिपेंड करेगा सर डिपेंड करेगा सर. अभी वो डिसाइड नहीं हुआ है सर. सर क्योंकि अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं. मान लीजिए सर, किस चीज पे डिपेंड करेगा? यस सर. सर अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, बट अगर ये
नॉलेज हम किसी से किसी का भला कर सकते हैं तो that would be good karma, otherwise it would be Hmm. karma. Yeah, one good thing you For told is example, we got a job and we earn money, and with that money we are doing something nonsense, so that would be a bad karma eventually. perfect, that is what. So good point. कैसे आप उसको यूज करने वाले हो वो भी डिफाइन करेगा कि आपने गुड कर्मा क्या बैड किया. सी इन जनरल इफ यू से इंजीनियरिंग इटसेल्फ, तो दैट इज नॉट अ बैड कर्मा, दैट इज ओके, दैट्स अ गुड ना. नाउ सी आप किस कॉन्शियसनेस के साथ कर रहे हो, किस पर्पस के लिए कर रहे हो, वो उसको डिफाइन करेगा कि वो अकर्मा है या फिर गुड कर्मा है. आप जस्ट करते हो, ठीक है चलो मैं बस पढ़ रहा हूँ, इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ ताकि मैं थोड़ा पैसा कमा सकूँ और कुछ भला कर सकूँ लोगों का, तो ये गुड कर्मा हो गया आपका, राइट. आपको एक अच्छा क्रेडिट मिलेगा उसके कारण, गुड कर्मा हो गया. लेकिन अगर आप कर रहे हो कि मैं करता हूँ स्टडीज, अपना स्टडी करना चाहता हूँ ताकि मैं अपना आगे चल के डिवोशनल सर्विस कर पाऊँ, आगे चल के मैं अपने आप को स्पिरिचुअली हेल्प कर पाऊँ. इस वर्ल्ड में जब हम रहते हैं तो हमको अपने कुछ मटेरियल नेसेसिटीज को भी फुलफिल करने के लिए कुछ पैसे वैसे चाहिए. तो अगर आप उस कॉन्शियसनेस के साथ करते हो कि ठीक है मैं कर रहा हूँ ताकि सो दैट आई कैन मेंटेन माय बॉडी एंड आल्सो आई कैन प्रैक्टिस माय स्पिरिचुअल लाइफ, then that will be a karma. Then it will be no more a good karma. It will become an akarma. Okay. If you are doing it for the pleasure of Krishna, just for the sake of pleasing Krishna, then it becomes a akarma. समझ में आया आपको? The purpose will make it a karma और a good karma. ठीक है. तो ये बता रखा है यहाँ पे. तो जो भी हम स्पेशल एक्टिविटीज करते हैं हम उसका हमको रिएक्शंस नहीं मिलता है. दैट्स द बेस्ट पार्ट है ना. दैट इज कॉल्ड एज. और वो स्पेशल एक्टिविटीज हमारे परमानेंट अकाउंट में ऐड होती है और हमको they will take us back to Godhead. Okay. Now next come this. Again this comes about the punya and the akarma. See यहाँ पे बता रखा है punya and akarma are not the same. तो पुण्य क्या करेगा आपको? पुण्य आपको इस संसार, आपको ना स्वर्ग तक लेके जाएगा. एक लोग स्वर्ग में जाने के लिए करते हैं ना, बहुत सारे यज्ञ वज्ञ करते हैं. तो अगर आप पुण्य एक्यूमुलेट करोगे तो आपको और अच्छे बेटर फैसिलिटीज मिलेंगे एंजॉयमेंट करने के लिए. जैसे हम देखते हैं ना कि टाटा बिरला के घर में कोई पैदा हुआ है, इसका मतलब है कि उसका पुराना कर्मा अच्छा है. तो वैसे ही आपका अगर आपने कुछ अच्छे पुण्य वाले काम किए तो आपको आपको स्वर्गलोक तक भी जाने का मौका मिलेगा. दैट इज अ थिंग. लेकिन अकर्मा क्या है? अकर्मा विल टेक यू बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. दैट इज अ वन थिंग. सो एग्जांपल पे देयर, इफ समवन डिस्ट्रीब्यूट्स फ्री वाटर, इन द नेक्स्ट लाइफ ही विल गेट अ होम नेक्स्ट टू अ रिवर, और ही विल लिव इन द हाउस विद 24 आवर्स वाटर सप्लाई. सी ये लॉ ऑफ कर्मा इस तरीके से एक्ट करता है. अगर आपने इस लाइफ में किसी को हेल्प किया तो आपको भी बाद में हेल्प मिलेगा. इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स उस चीज के लिए रखे हैं. बट सी देखो यहाँ पे बता रखा है, spiritual world or Vaikuntha is the eternal residence of the Supreme Lord and His devotees. Once a person reaches there, he never return back to this material world. If someone aborts a child or kills a cow, they will get killed in the next life. If someone puts their foot over an ant, in the next life, he may hit his knee and experience equal amount of pain that they incurred to an ant. Thus, for the punya, punya मतलब कि material credits, जो pious credits होते हैं, and paap, sinful credits, everyone reaps the fruits. Therefore, it is said, as you sow, so shall you reap. जो भी हम पाप और पुण्य करते हैं उस सब का हमको भुगतना पड़ेगा. इवन जब हम चल रहे होते हैं तो बहुत सारे एंट फ्रेंड्स मरते हैं, उसका भी हमको रैशेस मिलता है एक्चुअली. लेकिन अकर्मा क्या होता है? इट इज फुल्ली स्पिरिचुअल एक्टिविटी एंड इसके कारण कुछ हमको कर्मा नहीं मिलता है, इसके कारण कुछ रैशेस नहीं मिलता है. भक्ति इज नॉट मेंट फॉर द मटेरियल प्रमोशन, बट इट इज मेंट फॉर द ट्रांसफर टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड बियॉन्ड द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. सो अकर्मा इज बियॉन्ड बोथ द कर्मा एंड द विकर्मा. देखो जो अच्छे काम होते हैं उसको कर्मा बोलते हैं, और जो बुरे एक्टिविटीज होती है उनको विकर्म बोलते हैं हमारे वैदिक डिक्शनरी के हिसाब से. ओके. इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, आप में से कोई पढ़ेगा इस एग्जांपल को, सोल्जर वाला? That will make it very clear. Read it. A soldier fighting on behalf of the government is not implicated for killing the enemy soldiers. When he returns from the battle after killing many, he is awarded a Paramveer Chakra or some similar medal by the army. When he is back at home, if he picks a quarrel and attacks his neighbor for some personal reason, he is put behind the bars. Similarly, by working for Krishna, as per instruction of Krishna, whatever we may do, making flower garlands as Sudama florist did, preaching as Srila Prabhupada did, fighting battle as Arjuna did, etc., we can be not only free from good and bad karma, but also become blessed and protected by the Supreme Lord. तो आपको एग्जांपल समझ में आया यहाँ पे दिव्यांशु? क्या एग्जांपल दिया है यहाँ पे? Can you explain this example of this army fellow? Yes, sir. Like, sir, Soldier. वैसे तो yes, sir. Tell. So, like,
वैसे तो अगर देखा जाए जैसे जनरली तो फाइटिंग जो है वो बुरा माना जाता है, उसके लिए लाइक आपको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन इफ यू आर फाइटिंग फॉर द गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, दूसरे एनिमी सोल्जर्स के बिहाफ, तो उसके लिए आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा, उल्टा आपको परमवीर चक्र या फिर कोई मेडल वगैरह मिलेगा। करेक्ट करेक्ट। यस सर। तो सिमिलरली है कि हम जो भी काम जैसे कर रहे हैं, तो इफ वी आर वर्किंग फॉर कृष्णा, शास्त्रास के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए हमें कोई कर्मा नहीं मिलता है। परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू सो मच। या तो जैसे सोल्जर होता है, अगर वो किसी कमांडर के अंडर में काम कर रहा है, मार रहा है किसी लोगों को, तो उसको कुछ उसको चक्र मिलेगा। लेकिन अगर वो अपने खुद के हिसाब से करता है तो फिर उसको उसको भी फांसी की सजा दी जाएगी। वैसे हमारे लाइफ में भी है, अगर हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं कृष्णा के डायरेक्शन में, तो उसके लिए हमको कुछ कर्मा नहीं मिलता है, बल्कि वो हमको हेल्प करती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक पांडवास, दे फॉट, बट दे फॉट फॉर द pleasure of Krishna because Krishna wanted that fight to happen. So then we don't get karma, you know. That's the beauty, you know. That's the beauty of taking to the spiritual life, that we get freed from the karma. तो सी externally आपको दिखेगा कि देखो externally तो दोनों तरफ से देखोगे तो मार नहीं है, जो आर्मी वाला सोल्जर है वो मार ही रहा है, एक्सटर्नल एक्टिविटीज तो सेम रह रही हैं। लेकिन क्या है, क्योंकि एक एक्टिविटी की जा रही है अपने प्लेजर के लिए और एक एक्टिविटी की जा रही है कृष्णा के प्लेजर के लिए, इससे दोनों में डिफरेंट रिजल्ट हमको मिल पा रहा है। राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे भी आप लोग का वर्कशॉप हुआ, आप लोग के लिए कुकिंग हुआ, अभी बहुत सारे बाहर वाले लोग भी हैं जो लोग रेस्टोरेंट में कुकिंग करते हैं, राइट। लेकिन उसके कारण क्या होगा, लाइक दे विल नॉट ऑफर इट टू कृष्णा, एंड उसके कारण उनको कोई दे विल गेट सम कर्मा। कोई जस्ट नॉर्मल वेजिटेरियन फूड बना के भी दे रहा है तो भी उसको कुछ कर्मा लगेगा, क्योंकि किलिंग उसमें इन्वॉल्व है। लेकिन बिकॉज इट वाज बीइंग ऑफर्ड टू कृष्णा, इट वाज डन फॉर अ स्पिरिचुअल पर्पस, फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा, एंड व्हाट हैपेंस, यू डोंट गेट एनी कर्मा आउट ऑफ दैट। सेम है, लाइक समझ में आया ना आपको, कॉन्सेप्ट समझ में आया? आई होप क्लियर हो गया होगा इस एग्जांपल से। ओके, चलो आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, इफ यू हैव सम क्वेश्चंस दैट आल्सो वी विल टेक, है ना। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी आपके इसमें आंसर हो जाएंगे इस डॉक्यूमेंट में, कुछ और बच जाएगा तो हम डिस्कस कर सकते हैं ना। So, यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट बता गया कि कर्मा इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द सुपर सोल। हमारा जो कर्मा होता है, हमारे लाइफ में क्या चीजें आने वाली है वो कैसे हमको पता, कैसे कौन देखता है उस चीज को, कौन मॉनिटर करता है? सुपर सोल, मतलब कि परमात्मा। तो हम सबके हार्ट में भगवान रहते हैं, परमात्मा के रूप में बोलते हैं ना परमात्मा। टेक्निकली इज नोन एज द शिरोदक्षय विष्णु। तो हमने क्या क्या एक्टिविटीज किया है, जैसे सपोज इस लाइफ में मैंने जो जो एक्टिविटीज किया है वो सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है, भगवान उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। और मैं क्या डिजर्व करता हूँ अपनी नेक्स्ट लाइफ में, वो भगवान भगवान को क्योंकि सब कुछ पता है, नथिंग इज हिडन फ्रॉम द लॉर्ड। तो उसके हिसाब से भगवान को सारी चीजों के बारे में पता है मेरे हार्ट में, क्योंकि भगवान है। और फिर भगवान उसके हिसाब से मुझको अगले बॉडीज देने वाले हैं, बिकॉज ही इज अ विटनेस, ही इज अ साक्षी। इसलिए बता रखा है कि जो कर्मा होता है हमारी लाइफ में जो भी चीजें आती हैं, जो भी हमने पाप और पुण्य पहले किया उसके हिसाब से, वो सब कौन देता है? भगवान देते हैं, क्योंकि भगवान को पता है कि हमने क्या क्या चीजें की, क्या नहीं की। He takes care of that, And Krishna speaks also this the same thing in the Bhagavad Gita. Sarvasya chaham hide sanivishto matah smritir jnanam apohanam cha matah smritir jnanam apohanam cha aham I'm forgetting the next line, I think. Sarvasya chaham hide sanivishto matah smritir jnanam apohanam cha Vedesa sarve rahameva vedyo vedanta krit veda videva chaham. So Krishna speaks there that how I am the one who gives you remembrance, I am the one who gives you forgetfulness. तो भगवान हमको याद करवाते हैं, भुलाते हैं, भगवान हमें अपना कर्मा देते हैं उस तरीके से। ओके, नेक्स्ट थिंग इज दिस क्वेश्चन, व्हाई डू बैड थिंग हैपन इन आवर लाइफ दो वी ट्राई टू डू गुड नाउ? आई थिंक ये हमने ऑलरेडी पहले बार डिस्कस किया था, राइट? एंड यू रिमेंबर द आंसर ऑफ दिस। हम अपनी लाइफ में अच्छा करने का कोशिश कर रहे हैं, बट फिर भी हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में कई बार बहुत सारी चीजें बुरी आती हैं। ऐसा क्यों होता है? एंड इफ यू कैन एक्सप्लेन। प्रीवियस कर्मास की वजह से, मतलब प्रीवियस कर्मा तो रहेंगे ही। हाँ, perfect, right? We don't know our history, right? That's why it comes. So because laws of this reincarnation are operating ना, तो हमारे जो भी हमने reactions किए हैं पहले, इसमें एक एग्जांपल भी दे रखा है about this farmer वाला। आप में से कई लोग खेत अपने गांव के बैकग्राउंड के ना, गांव में अनाज को स्टोर करने के लिए एक बड़ा सा वो होता है, उसको आई डोंट नो क्या बोलते हैं, बड़ा सा ड्रम टाइप का होता है। तो उसमें क्या करते हैं, ऊपर से अनाज डालते रहते हैं, स्टोर करके रखने के लिए, समटाइम्स 12 महीने 14 महीने के लिए स्टोर करके रखना है। तो अभी आपने ऊपर से सपोज कुछ ग्रेन्स डाला, लेकिन नीचे से हम ग्रेन्स निकालते हैं। तो अभी आप जब नीचे से निकालोगे तो नीचे से जो निकालोगे वो वाला इमीडिएटली ऊपर वाला नहीं होगा, वो वाला पहले वाला जो स्टोर किया हुआ है वो वाला होगा। वैसे हमारी लाइफ में हम देखते हैं कि कुछ बुरी चीजें आ रही है, मान लो भले हो सकता है कि आप बहुत अच्छी चीजें कर रहे हो वो समय से, लेकिन
आप अभी देखते हो कि बहुत सारी बुरी चीजें आ रही है। क्यों? क्योंकि आपको अभी पहले पुराने वाली चीजों का रिएक्शंस मिल रहा है जो पहले वाले आपने कर्मा कर रखे हैं उसके कारण से। लेकिन हाँ, अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो फिर क्या है, आपको धीरे धीरे वापस वो आपके लाइफ में आएंगे। ऐसे बहुत सब ये चीज बहुत प्रैक्टिकल है, आप इस वर्ल्ड में देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लाइक लाइक आई हैव सीन पीपल लाइक लाइक आई कैन गिव यू सम एग्जांपल। माय फादर वाज इन आर्मी, सो आई हैव सीन दैट सम ऑफ आवर ऑफिसर्स ना, कई ऑफिसर्स के लड़के बहुत बिगड़ जाते हैं। Now, why it happens so? Because many of these officers now I have found many of these officers are corrupt many of the times. Like उनके पास में पावर होता है तो वो बहुत सारे गवर्नमेंट का पैसे को ऊपर नीचे कर लेते हैं। तो क्योंकि क्या है, वो लोग अधर्म का काम कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू एक्यूमुलेट मोर मनी बियॉन्ड देयर कोटा। तो क्या होता है उनके केस में, आप देखोगे कि उनके जो लड़के वड़के होते हैं वो थोड़े बिगड़ जाते हैं, दे स्टार्ट हैविंग सम बैड हैबिट्स एंड ऑल। तो वो जो भी अनलॉफुल जो भी मनी उन्होंने इकट्ठा किया था जो उनके कर्मा में नहीं था, वो सब क्या उनके सन्स के थ्रू या फिर उनका कुछ 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 कोर्ट केसेस हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो भी अनलॉफुल मनी उन्होंने एक्यूमुलेट किया था विच वाज बियॉन्ड देयर कर्मा, वो सारा फिर वापस ड्रेन आउट हो जाता है। वैसे कई लोग आई हैव सीन इन सॉफ्टवेयर कंपनीज आल्सो, sometimes people just for the sake of some little more money they try to give more number of hours and all. So just for example, like if by working for 2 hours more you can get a 5,000 rupees more in your monthly salary. तो कई लोग इस तरीके से काम करना स्टार्ट कर देते हैं, they are getting a decent salary, let us say 50,000 55,000, and just for the sake of 5 more thousand they will try to 2 more hours they will try to give. They were working for 10 hours, now they will be ready to work for 12 hours. तो होता क्या है, 12 घंटे काम करने के कारण उनको डिजीज होती हैं and then they have to pay to the doctors. तो वो जो एक्स्ट्रा मनी कमाते हैं वो चला जाता है एक्चुअली। So like this, you'll find the laws of karma are always acting in this world. So anyways, this was this point about why we find bad thing happening in our life or somebody else's life because of the previous things which have happened. Okay. Next is about, can the good karma cancel the bad karma? अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो क्या हमारा जो बैड कर्मा है वो खत्म हो जाएगा? See what it says. Good karma and the bad karma do not cancel each other. One must suffer all the bad karma and enjoy all one's good karma, as will be seen in this history of King Nega. But if one somehow renders devotion service to the Supreme Lord, then one can be liberated from all the good and the bad karma and go back to Godhead. Okay? तो ऐसा नहीं होता है कि आपने कुछ बहुत सारा बैड कर्मा किया था और अभी आप गुड कर्मा कर रहे हो तो जो बैड था वो खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, आपको जो आपने बैड किया था उसको भी आपको भुगतना पड़ेगा और जो आपने अच्छा किया था उसको भी आपको भुगतना पड़ेगा, ऐसा रहता है। ये बहुत फेमस स्टोरी है, ये आती है, दिस इज अ ट्रू स्टोरी व्हिच हैपेंड विद वन ऑफ द सन्स ऑफ विद वन ऑफ द ग्रेट किंग्स कॉल्ड एज नृगा। ये भागवतम में रियल स्टोरी आती है, मे बी इसको आप अपने लेवल पे पढ़ लेना, है ना, आपको इससे समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इट कम्स द लॉजिक फॉर बिलीविंग दैट द रिएक्शंस टू आवर कर्मा मे कम इन द फ्यूचर लाइव्स। ओके, कई लोग बोलते हैं कि अरे किसने देखा है आगे का, पता नहीं कुछ आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना, बट एक्चुअली चीजें मिलती हैं। देखो तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स दे रखे हैं, समथिंग कॉल्ड एज इंस्टेंट कर्मा, दिस कॉल्ड एज डिलेड कर्मा। इंस्टेंट कर्मा मतलब कि जो इमीडिएटली हमको जो रिएक्शंस मिल जाती हैं, राइट। आपने ओवर ईट किया, मान लो आपने ज्यादा खाया, सपोज यू हैड अ बिग फीस्ट, यू ओवर ईट, इमीडिएटली क्या होगा, कुछ समय बाद में देखोगे कि आपका पेट अपसेट हो जाएगा, यू विल हैव डिफिकल्टी इन पासिंग। So that is called as the instant karma, जो हमको immediately मिल जाती है reactions। और delayed मतलब कि जो थोड़े समय बाद में मिलती है। Somebody is smoking today, drinking today, then in some 15 years, 20 years, he will be able to get that karma, like that. Same way। और कुछ चीजें होती है जो कि हमारे इस लाइफ में ना मिलके हमको अगले लाइफ में मिलती हैं reactions। That is called as a delayed karma। इसमें examples भी दे रखे हैं कुछ वाले, आप इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। किसी ने कुछ चोरी किया था, डकैती किया था, इस लाइफ में उसको किसी ने पकड़ा नहीं, लेकिन उसको अगले लाइफ में उसका पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा। Nobody can escape the laws of karma actually, they are working very nicely। इसमें एक एग्जांपल दे रखा है अबाउट व्हाई ऑल द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र वर किल्ड इन द बैटल। तो ये भी एक उसके पीछे पास टाइम आता है, कैसे वो जो धृतराष्ट्र था वो अपने प्रीवियस लाइफ में एक हंटर था और उसने क्या किया था, 100 चिड़िया के 100 बच्चे थे, उनको उसने एक साथ मार दिया था। यहाँ पे लिखा है ना, अ सर्टेन हंटर किल्ड 100 birds even as the parents were alive. The hunter was to suffer for his sin by seeing his own 100 sons dying before him. One can obtain a son only when one has a certain stock of punya. The hunter had to perform many pious activities for 50 lifetimes to have 100 sons, after which he was eligible to receive the karmic rations of killing the birds. This man was none other than the king Dhritarashtra. तो हम क्यों देखते हैं कि धृतराष्ट्र के सामने उसके जो 100 बच्चे थे, 100 सन से क्यों उनका डेथ हुआ, क्योंकि उसका पुराने लाइफ में हिस्ट्री रहा है, उसने भी एक बर्ड, एक चिड़िया थी, उसके 100 बच्चों को उसने मारा था, तो इसलिए उसके ऊपर वो कर्मा आना था वापस, उसके भी 100 बच्चों का किलिंग होगा। तो जब उसको ह्यूमन बॉडी मिल गया, धृतराष्ट्र का बॉडी मिल गया, तो फिर उसके सामने उसको वो रिएक्शंस नलिफाई करना पड़ा। ओके, ये स्टोरी आता है उसके बारे में, रियल स्टोरी पुराण में आता है इसके बारे में।
और इसमें देखा है अबाउट प्रारब्ध कर्मा एंड संचित कर्मा। तो ये सिंपल है, लाइक जिससे हम सबके पास में दो घड़े हैं, एक पाप का घड़ा है, एक पुण्य का घड़ा है, ओके। और वो पाप और पुण्य हमको भोगना है अलग अलग लाइफ टाइम्स में, ओके। हर एक लाइफ टाइम के लिए हमको कुछ कुछ पाप और कुछ पुण्य दे दिया जाता है। इट्स नॉट डेट कि पूरा पाप एक साथ दिया जाता है, पूरा पुण्य एक साथ दिया जाता है, नहीं तो हम अगर मान लो पूरा पाप दिया जाएगा मतलब आपको इतना सफर करना पड़ेगा कि आप परेशान हो जाओगे। तो होता क्या है कि हमारा जो भी टोटल स्टॉक है उसमें से कुछ पार्ट हमको इस लाइफ में भोगने के लिए दिया जाता है, लाइक डेट, तो कुछ पाप दिया जाता है, कुछ पुण्य दिया जाता है। उसी को बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म मतलब कि जो फिक्स्ड कर्म हमको इस लाइफ के लिए दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल लाइक जैसे हमें किस फैमिली में बर्थ लेना था, या किसके साथ हमारी शादी होनी थी, या फिर क्या हम कितना हमारा इंटेलिजेंस का लेवल होना था, कितना हमको एजुकेशन मिलना था। कुछ चीजें जो हमारी लाइफ में फिक्स्ड रहती हैं, लाइक वी कैन नॉट चूज अवर पेरेंट्स, वी कैन नॉट चूज अवर हेयर कट, वी कैन नॉट चूज अवर ब्यूटी, वी कैन नॉट चूज अवर इंटेलिजेंस। तो ये जो चीजें फिक्स्ड है ना, ये हमारे कर्मा के हिसाब से हमको ऑलरेडी मिल जाती हैं। उसी को बोलते हैं प्रारब्ध कर्मा। मतलब इस लाइफ में हमको जितना भोगना था, जो पार्ट हमको मिल गया है, उसे बोलते हैं प्रारब्ध कर्मा। एंड संचित कर्मा मतलब कि टोटल स्टॉक जो है हमारे पास में, तो दैट इज कॉल्ड एज अ संचित कर्मा, ओके। बाकी इसमें क्या है कि डिफरेंट कर्मिक सीड्स टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ 55, ठीक है। ये कूटम बीजम फलम, ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, इसमें आई थिंक जाने का जरूरत नहीं है बिकॉज टाइम भी हो गया, इसमें भी जाने का ज्यादा जरूरत नहीं है, ओके। ये 3-4 तरीके के कर्म होते हैं जो बता रखा है इसमें, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, विहित कर्म, काम्य कर्म एंड निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म मतलब कि ऐसी एक्टिविटीज जो नहीं करनी चाहिए, जो शास्त्र ने मना किया है, जैसे ब्रेकिंग ऑफ द 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। काम्य का मतलब है कि ऐसी चीजें जो हम करना चाहते हैं, जो हम अपनी इच्छा से करना चाहते हैं, उसे काम्य कर्म बोला जाता है। विहित कर्म मतलब होता है कि तो जो काम हमको करने के लिए कहा गया है, फॉर एग्जाम्पल आप सबके लिए भी क्या है, यू हैव टू स्टडी, दैट इज कॉल्ड एज योर विहित कर्म। देन देयर इज अ नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक मींस ओकेशनल और एडहॉक ड्यूटीज, कुछ ओकेशनल एडहॉक ड्यूटीज जो आती है हमारे लाइफ में। नित्य कर्म होता है कि जो हमारे लिए प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है, जैसे कि जो भी स्पेशल एक्टिविटीज है हमारे लिए। तो एनीवेज एसेंस इसका ये है कि हमको क्या करना चाहिए, वी हैव टू प्रायोरिटाइज आवर स्पेशल एक्टिविटीज, बिकॉज स्पेशल एक्टिविटीज आर द वंस व्हिच आर गोइंग टू free us from all types of karmas and which are going to help us give us the ultimate goal of life. And यहाँ पे एक चीज और बता रखी है, देखो, forgetfulness of the cause is no excuse. A thief may tell the police that he does not remember having committed a particular theft, but if he is found guilty, he will be punished. Similarly, our forgetfulness of the cause of our suffering or enjoyment will not alter it. The coming reactions will certainly come in an appropriate life. Okay. तो जस्ट बिकॉज हमको याद नहीं है कि हमने पुराने समय में क्या गलत किया था, क्या गलत नहीं किया था, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी रेशंस नहीं आने वाली है। वो रेशंस हमारे पास में आने वाली है। Prabhupada used to give another example, like it is being told that innocence is not a excuse. For example, like a small boy is there, let us say, एक छोटा लड़का है, अगर वो फायर को, सपोज आग जल रही है, अगर वो जलती हुई आग में हाथ डालेगा तो उसको बर्न होगा कि नहीं होगा, बताओ। कोई छोटा लड़का है, छोटे में हमने भी किया होगा ना ये चीज, फायर बहुत फैसिनेट करती है छोटे में, होगा ना। So fire will not see that he is a small poor child, innocent child, he should not be burned. Same way, जो भी हम कर्मा करते हैं उसका हमको रिएक्शंस मिलना ही है एक्चुअली, उसको हम एस्केप नहीं कर सकते हैं, दैट इज व्हाट। तो इसलिए बोलते हैं कि इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। Just because we are ignorant does not mean that we'll not get the sufferings. We'll have to suffer in case, Now this is the last part of this. I think इस पे भी हमने ऑलरेडी थोड़ा डिस्कशन पहले किया है, but again we can discuss. Why does God mercilessly create natural calamities, claiming thousands of the lives? Like why do we find, कल ही मुझसे आपका स्टूडेंट पूछ रहा था आपके बैच में कि सर क्यों हम देखते हैं कि अगर भगवान है तो फिर सब चीजें क्यों हमको ऑर्डर में क्यों नहीं दिखाई देती है इस वर्ल्ड में। लाइक वी फाइंड देयर आर सुनामीज, देयर आर अर्थक्वेक्स, ऐसी चीजें क्यों होती हैं। Any of you remember what answer we have discussed earlier about this thing? Why there are natural calamities? Why we find that so many people have to lose their life? Like now this corona is also going on. Any of you remember what is the reason? ग्रुप का पनिशमेंट डायरेक्टली मतलब शायद। हाँ, कार्तिक एक बार आप इसको पढ़ लो, आई थिंक एक बार पढ़ लोगे तो सबके लिए बहुत क्लियर हो जाएगा। Read this collective karma. Collective karma is the karma suffered by a large number of people simultaneously. The volcanic eruption of Mount Vesuvius in 79 AD buried Pompeii and its 20,000 citizens under 20 feet of volcanic ash. Although advertised as a ship that could never sink, the Titanic with its 1,500 people, mostly millionaires, sank on her maiden voyage.
The tsunami flood claimed 3.8 lakh lives, and the hurricanes in New Orleans brought everything to a halt. Blackout, no electricity, telephone lines cut, buildings and transport vehicles broken and shattered. All transportation stopped, several lines claimed, etc. Such sins as abortion of children and slaughter of cows, for example, must eventually result in severe collective bad karma for those involved in such horrible acts. तो समझ में आया हमको ये पॉइंट के? There's something called as a collective karma. Collective karma क्या है? बहुत सारे लोगों ने कुछ बैड कर्मा किया है मान लेते हैं, तो उन सबको एक साथ पनिशमेंट देने के लिए क्या किया जाएगा? The nature will make arrangements so that all of them are punished together. तो इसलिए आप देखोगे कि जो अर्थक्वेक्स आते हैं, सुनामीज आते हैं, उस समय क्या होता है? बहुत सारे लोगों का डेथ होता है. तो एक्चुअली क्या होता है, जो लोग डिजर्व करते हैं किल्ड होना, इस तरीके से सफर करना, उन लोगों को नेचर इस तरीके से अरेंज करती है ताकि वो लोग सफर कर रहे हो ना. और जिनके लिए नहीं लिखा है वो लोग बच भी जाते हैं. आप देखोगे ना, लाइक आई वाज स्टडीइंग द एग्जांपल अदर डे ना, आपने सुना होगा कि अर्थक्वेक आया और एक व्यक्ति 10 दिनों के बाद उसको 10 दिनों तक वो दबा रहा मलबे के अंदर, बट फिर उसको निकाल दिया गया और जीवित रहा वो. तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके कर्मा में नहीं लिखा था उस तरीके से मरना, इससे वो बच जाते हैं. लेकिन अदर पीपल दे हैव ऑलरेडी डाइड. तो दिस कॉल्ड एज अ कलेक्टिव कर्मा. एंड हमारे शास्त्र बताते हैं कि जैसे हम सुनते हैं ना, वॉर्स होते हैं, वॉर्स, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ. एक्चुअली ये सब भी क्यों अरेंज होते हैं ना, because see, people are killing lot of animals, people are doing lot of sinful activities, then the nature also makes arrangements for many people to be punished and to be killed. That's why if you will read the history, there were so many people who died in the first world war, second world war. That's why Prabhupada used to say that if we have to stop these wars and all, then we have to propagate this chanting of Hare Krishna mantra, the yagya. तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि people are doing sins, people are, like I told you the statistics, 5 crore children are being aborted every year. Just Ravindra Poo, Haribol, like 5 crore children are being aborted every year. See, 5 crore लोगों को हम मार दे रहे हैं, God's children को. Then the nature also arranges such thing that if people are doing that kind of sin, then they are also being killed together that particular way. Okay. So of course God is not cruel, but this is a system which is being made by the God so as to help the people, to understand that they should not do the sinful activities. So that is called as the concept of collective karma. तो इसलिए वॉर भी कब होते हैं ना, जब पीपल आर वेरी सिंफुल. आप देखोगे वेजी टाइम में ना वॉर्स नहीं हुआ करती थी, ज्यादा लड़ाइयां नहीं हुआ करती थी, इतने लोग नहीं मरते थे उस समय. क्यों नहीं होते थे? क्योंकि पीपल वर नॉट सिंफुल. When people are sinful, then you cannot stop the famines, then you cannot stop the epidemics. Even अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना, the number of natural calamities which are happening now, as we are progressing more now, then we are finding that the number of natural calamities has also increased a lot. It is just like, जैसे suppose एक son है, like all of you must be getting some pocket money from your parents, right? How many of you get some pocket money from your parents? You can raise your hands. किसको नहीं मिलता क्या pocket money? How come like this? You don't get any pocket monies? Utkarsh ने raise किया hands. What about others? Okay. Strange, huh? सर जब जरूरत हो तब मांग लेते हैं. हाँ मतलब वही, उसी को पॉकेट मनी बोलेंगे. जब जरूरत होता है तो दे देते हैं ना पेरेंट्स. तो मान लो सपोज इफ अ सन इज देयर नाउ and the parents are finding that the son is becoming rebellious, disobedient, and is misusing the money, then will the mother, even though the mother will be very loving and caring, but will the mother want to give pocket money to the child? Will she continue pocket money to the child anymore? No, sir. No, right? Same with this maternal nature also, this mother nature also, when people become irreligious, when they become sinful, then what happens is the mother nature also withdraws the supplies, and the mother nature also punishes them in this particular way, so that because people they start misusing the things and all. That is called as a collective karma. That's why we find, अगर आप पढ़ोगे ना history, you can find it out. अभी जो आज के समय में जितने natural calamities आती है ना, you must have heard about America ना, एक के बाद एक वहाँ पे आजकल वो आती रहती है, there are what was that, Katrina, Rita, all these different types of cyclones, tornadoes, they keep on coming. Now this this thing has also come up now. So many people are getting killed because of the corona. Actually, the underlying reason is because people are doing sinful activities. That's why it happens like this. This is the concept of collective karma. We have to get out of the karma. Okay. And the last part it says is how to get free from the karma and the reincarnation. Yeah. आप में से कोई पढ़ेगा इसको? Ayush, can you read this part? Last topic.
Ayush, is he there or somebody else? कोई और पढ़ना चाहेगा इसको? हाँ कार्तिक, आप पढ़ो. हाँ पढ़ो. Just as a cashier counting money for a bank may give loans and accept big sums on behalf of the bank, but he is aloof from it. The moment he meddles with the money for own purpose, he will be punished. Similarly, the living entity who works on behalf of Krishna, the head of the universal government, is not subjected to the law of karma. Be like a lotus leaf. By chanting Hare Krishna every day, studying Srimad Bhagavatam, eating only Krishna Prasad, and engaging in devotional service, one can rise above all problems of this world. One who performs his duty without attachment, surrendering the results onto the Supreme Lord, is unaffected by sinful action, as the lotus leaf is untouched by water. One can offer the fruit of one's work to God. This work, known as devotional service, is karma free. Working in Krishna consciousness means sacrifice. The human being must sacrifice his time, money for the Satisfaction of the Supreme. must sacrifice time, money for the satisfaction of the Supreme. Work performed as devotional service not only saves one from karmic reaction, but gradually elevates one to the transcendental loving service of the Lord, the key to entering the kingdom of God. Yeah, so this is the secret of how we can become free from this karma and the reincarnation. Very simple thing is, we have to just do all our duties for the pleasure of Krishna. So the example is being given, like cashier का example दे रखा है. कोई cashier है पैसा गिनने वाला, तो अगर वो cashier का purpose क्या है, सारी money को लेना और जमा करवाना government के पास में, लेकिन अगर वो उस money को खुद use करने लगता है तो फिर difficulty आएगा. वैसे our position is, you see, everything is given by God only to us. Even our body, our intelligence, our mind, and even this whole matter, everything is the energy of Krishna only. So if we use everything for the service of Krishna, if we connect everything with Krishna, then actually we will not get entangled, we will not get any karma. Okay. For example, like all of us also now, we are also wrong. See, because we are chanting Hare Krishna, because we are reading Bhagavad Gita, we are trying to follow God in our life. तो इसलिए even जो हम sins करते हैं ना, वो सब भी भगवान उसको उसके reactions हटा देते हैं. For example, like when I am also walking on the street, many ants may be dying. When I am breathing the air, there may be many bacteria which may be getting killed. But because we are trying to practice spiritual life, we will not get any reactions of those sins. And see, this is the reason when we perform devotional service, when we do kirtans, when we do chanting Hare Krishna, when we are trying to live our life for pleasing Krishna, then you will find that what happens is our pap and punya also get exhausted. And that's why we feel lightness. Like many of you were sharing that you felt very happy being there. You felt very happy because of the kirtans, because of the prasad which you took. Why it was there? Because क्या है, जो पाप का घड़ा है आपका, वो लाइट हो जाता है. Many of the पाप की जो रेशेस है वो खत्म हो जाती है जब हम भक्ति करते हैं, स्पेशल एक्टिविटीज करते हैं. तो अगर पाप के कारण हमको सफर करना पड़ता है. लेकिन जैसे अगर आपका पाप कम होगा तो आपको एक नेचुरल ब्लिस फील होगा. You will be able to feel natural happiness that happens. That's why chanting is very important and following of the principles given in the Shastras is very important. Then what will happen? Then we can become free from these reactions, And same way, whatever activities we do, we have to do it for the pleasure of Krishna. Like all of your students now, you are studying your engineering subjects now. Your consciousness should be, let me try to please Krishna by my studies. Like for example, like now, if some of you become very good toppers, very good in your studies, then you will be also very inspiring for your juniors who will be coming next year. Then they will also be inspired to take to chanting or to understand this knowledge. Like all of you also, like you find inspiration from your Gaurav sir, Akshay sir, Tushar sir. Why? Because they're also very good into their studies, academics, and into their professions, and they are also and the secret for their success in those fields is because of the spiritual life. The same way, this is the right use of our talents and the skills. If we can use them for the service of the God, in that way, then what will happen is we will not get the karma of that. Otherwise, if you will study, okay, I want to study, I want to have a very good placement. Yes, you can get all those things, but that will also entangle you. You will get placement and other things will get, but that will keep you in this material world only. Okay. So just to summarize, जो हमने देखा, we discussed about what is karma, what is akarma, and we discussed about why bad thing happened to the good people in this world. And we discussed that how if we want to get rid of this karma, then we have to do simple thing. We have to follow the spiritual activities of chanting and reading of the spiritual knowledge and remaining away from the bad habits, breaking the regulative principles. And in that way, if you will do, then we will be free from our karma. See, देखो externally आपको same activities दिखाई देंगे, लेकिन क्या है,
आपने देखा, मैं आपको एग्जांपल से बता के एंड करता हूँ। जैसे आपने देखा पहले की टेप रिकॉर्डर हुआ करते थे ना, टेप्स, ऑडियो टेप्स होती थी ना, गाने बजाने वाली, देखिए आपने, उसमें दो रील्स, दो वैसे हुआ करते थे ना, दो खड्डे हुआ करते थे। आई कैन शो यू ऑल्सो, अदरवाइज आई डोंट। आपको समझ में आया? पहले की जो ऑडियो कैसेट्स होती थी ना, देखिए आप लोगों ने, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो उसमें आपने देखा है दो वो, उसमें दो रोलर्स रहा करते थे, देखा था आपने? और एक बीच में वो Yes, sir. एक फिल्म रहती थी, यू नो ना। अगर आप देखोगे रोलर्स को तो क्या दिखाई देगा, यू नो, दोनों रोलर्स घूम रहे हैं, ये वाला रोलर भी घूम रहा है, ये वाला रोलर भी घूम रहा है, दिखता है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. लेकिन एक डिफरेंस है, बता सकते हो क्या डिफरेंस है? एक डिफरेंस है, आई डोंट नो, आप में से कुछ को अगर समझ में नहीं आया तो मैं बट आपको एक सर्च करके दिखा भी देता हूँ। अच्छा, क्या डिफरेंस है वैसे दोनों में? कुछ डिफरेंस है दोनों में? दोनों घूम रहे हैं, राइट? या मैंने इसको निकाल भी दिया, आपको मैं दिखा देता हूँ, उनको शेयर करके दिखा देता हूँ। घुमाने से खुल जाता है। सो दिखा है आपको स्क्रीन पे? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, समझ में आया आपको? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। हरे कृष्णा, विजिबल ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ रील्स, यू नो। आपने देखा होगा ये पुराने समय में इसको यूज किया करते थे। मे बी यहाँ पे थोड़ा ज्यादा विजिबल हो रहा है। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसमें दो रोलर्स रहते हैं और एक घूम रहा है, दूसरा भी घूम रहा है, राइट? दोनों दिख रहे हैं कि दोनों घूम रहे हैं, लेकिन यू नो व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज दैट जो एक है, वन ऑफ देम इज गेटिंग मोर एंड मोर एंटेंगल्ड, एंड जो दूसरा वाला है वो क्या होता है, और फ्री होता रहता है। समझे? एक के ऊपर में और ज्यादा उस पर लिपट रहा है, और एक अपना पूरी तरीके से फ्री हो जा रहा है। तो ऑल्दो दिख रहे हैं दोनों की दोनों घूम रहे हैं, लेकिन एक क्या हो रहा है, और बाउंड हो रहा है, और एक क्या हो रहा है, बहुत फ्री हो जा रहा है। ये चीज समझ में आया आप लोगों को? व्हाट आई ट्राई टू शेयर? Yes, sir. Yes, समझ में sir. आया ना? श्योर? Yes. कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया तो प्लीज टेल, आई विल टेल यू अगेन। वैसे ही क्या है ना, देखो, जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं हमारे लाइफ में ना, सो सी देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन द स्पिरिचुअल एक्टिविटीज एंड द मटेरियल एक्टिविटीज। They will be same only, right? Like you'll find there will be some other seniors also in your college which may be also giving you some presentations, isn't it? There will be some other seniors also who will be also giving you some career guidance, and you have your Akshay sir, Tushar sir, and all these people also. They are also working in the companies, or other seniors will be also working in the companies. So externally, if you will see, you will find that you know the activities are same. These people are also working in the software company. These people are also giving you some presentations and all, but there's a difference. What is the difference? They are doing it for the pleasure of Krishna. They are chanting Hare Krishna. They are trying to align their life with the God's desires. And in that way, what they are performing is a spiritual activity. On the other hand, other people, they are doing it for their own sake. That is a karma. So in others' life, it's a good karma or the bad karma. Whereas in the case of all these people, it is a akarma. It's a spiritual activity which will liberate them. तो इसलिए एक्सटर्नली दोनों सेम दिख रहे हैं, लेकिन एक क्या हो रहा है, और एंटेंगल हो रहा है। तो कोई व्यक्ति है जो चैंटिंग नहीं कर रहा है या अपने स्पिरिचुअल लाइफ को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो क्या होगा, और कर्मा एक्यूमुलेट कर रहा है, गुड थिंग बैड थिंग को एक्यूमुलेट कर रहा है, उसके कारण क्या होगा, वो और एंटेंगल्ड हो जाएगा इस लाइफ में। लेकिन कोई अगर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा है, स्पिरिचुअलाइज कर रहा है हमारी एक्टिविटीज को, देन ही विल बिकम मोर एंड मोर फ्रीयर। सो ये चीज समझ में आया आप लोगों को, व्हाट आई ट्राई टू डिस्कस लास्ट पॉइंट? Yes, sir. Okay, fine. Okay, so wonderful, we are done with our presentation. Any questions you have related to what we discussed about this law of karma? तो हमको क्या करना चाहिए? We should try to go for the akarma, right? And it's very simple how we can go for akarma. If we will keep performing our spiritual duties nicely, which means chanting and reading, understanding the knowledge of the scriptures, and aligning our life as per the scriptures, then whatever we will do, that will also become a akarma, Then our studies, our even material professions will also not give us any good or bad karma, but it will also give us the spiritual credits. That will also help us to go back to the spiritual world. Just like in the case of Pandavas and Arjuna, even though they were fighting, now fighting is a material activity. It's a bad activity in general, bad karma activity. But because they were fighting it for the sake of Krishna, it was the desire of Krishna, and they were remembering Krishna while doing that. That's why that same activity was helpful for taking them back to Godhead, back to the spiritual world. The same thing can happen for our life also, okay? And this was one thing. And second thing, we have to understand it how karmas do play a big role in our life, actually speaking. So anyways, whatever past good and bad we have done, we don't know. But now we have a choice that we have a choice that if we will perform our spiritual activities nicely, then we will be able to have a good destination tomorrow. There's a saying in English, every sinner has a past
and every saint has a future. No, sorry, every saint has a past and every sinner has a future. एक saying इंग्लिश में, हर एक जो पापी होता है ना, सिनर, जैसे पाप किया, उसका एक, हर एक सिनर जो होता है उसका एक फ्यूचर होता है. इसका मतलब क्या है? मतलब आगे चल के उसको कुछ ना कुछ उसका बुरा मिलने वाला है. एंड हर एक जो सेंट होता है उसका एक पास्ट होता है. मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जांपल एक वाल्मीकि जी वाज देयर. What was his past? He was a daku. He has done a lot of sinful activities in the previous life. But because he took to the instructions of Narad Muni, he took to the spiritual life, all that past went into the background. So that's why it is called कि हर एक सेंट का एक पास्ट होता है. मतलब पास्ट में भले उसने जो भी कुछ गलत किया हो, बट उसको आगे कंसिडर नहीं किया जाता है अगर अच्छे से स्पिरिचुअली चीजों को फॉलो कर रहा है तो. और जो भी सिन करने वाला व्यक्ति है उसको फ्यूचर में सफर करना पड़ेगा. इसलिए we may have also done some good karma. We don't know हमने पुराने समय में कितना good karma किया है, bad karma किया है. We don't know, and we don't have to break our head also upon it. Now, if we are chanting Hare Krishna, if we are trying to align our life with the laws of the God, then actually Krishna will take care of our life. There's a saying I have seen. जैसे आपको पता है हमारे लाइफ में 9 ग्रह जो होते हैं ना, मंगल, शनि, बोलते हैं ना शनि भारी चल रहा है उसका, या फिर मंगल भारी चल रहा है. तो ये सारे जो ग्रह होते हैं ना, वो सब हमारे लाइफ को गवर्न करते हैं. लेकिन इन जनरल, लेकिन जब हम डिवोटी बन रहे होते हैं, जब हम कृष्णा का नाम लेना स्टार्ट करते हैं, then ये सारे ग्रह साइड में जाते हैं, and then Krishna directly takes care of our life. To the degree we try to follow Krishna, to that degree Krishna will also try to take care of our life actually. That's why as a devotee, what we should focus upon is, we should try to focus upon performing our spiritual duties very nicely. Then what will happen is, then we will also become free from all the bad and the good which we have done earlier and now, and we'll be able to accumulate spiritual credits, and we'll be able to go back to the spiritual world. Okay, so this was our first topic. This was about the role of karma in our life. Thank you so much. I am done. If some questions are there, I can take them for 5 minutes sir. more. For 5 more Yes, sir. minutes. And before that, Yes, Gaurav, sir. how many of you have questions? Can you raise your hands? Utkarsh has some question. Anyone else? Ayush also has some question. Okay, fine. Gaurav, you are there. You have some announcements, then you can make now. Then I can take questions. No? Yes, sir. Thank you, sir. ताकि जिनको अगर निकलना हो तो then they can proceed ahead, है ना? So we had communicated earlier that आपका ये 10 दिन जो है वो अभी एकेडमिकली थोड़ा फ्री है. So हमने आपके लिए एक समर कंपटीशन फेस्ट रखा है, जिसमें हमने बताया कि आपके लिए 2 कंपटीशन हमने बनाया था. एक चैंटिंग कंपटीशन था और एक बुक रीडिंग कंपटीशन था. बट हमने सोचा कि देयर विल बी वन मोर वंडरफुल कंपटीशन हम ऐड कर दें उसमें, सो दैट आपको भी एक अच्छा एक्सपोजर मिले टू द बुक्स. सो वी आर थिंकिंग ऑफ विल बी हैविंग अ प्रेजेंटेशन कंपटीशन, और वो प्रेजेंटेशन कंपटीशन होगा आपका 3 मई को, जहाँ पे एवरीवन इज वर्किंग इंडिविजुअली. कोई टीम्स नहीं है इस प्रेजेंटेशन के लिए, एवरीवन इज वर्किंग इंडिविजुअली. सो इंडिविजुअली सबको प्रेजेंटेशन तैयार करना है, पीपीटीज तैयार करना है, और 10 मिनट का प्रेजेंटेशन देना है. और टॉपिक क्या है आपका? आपका टॉपिक है हमने परिवर्तन में आप लोग को, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव रिसीव्ड अ गिफ्ट. एक बुक था जिसका नाम था द जर्नी होम. तो जर्नी होम एक बुक है, और अभी हमने एसएसटीडब्ल्यू कैंप में भी आपको कुछ बुक्स दिए हैं जो शिला प्रभुपाद के बुक्स हैं. सो आई थिंक मैचलेस गिफ्ट इज वन ऑफ देम, एंड राज विद्या इज अनदर, एंड आई थिंक ऑन द वे टू कृष्णा इज ऑल्सो वन. सो आई थिंक इसी का एक कॉम्बिनेशन है जो हमने आप लोग को होगा, किसी के पास मैचलेस होगा, किसी के पास राज विद्या होगा, एंड सम ऑफ यू मस्ट हैव ऑफ कोर्स रेड द जर्नी होम आल्सो बाय नाउ. तो जिन लोगों ने जर्नी होम मतलब आप लोग को या तो जर्नी होम या किसी प्रभुपाद बुक, 2 में से कोई एक टॉपिक पे आपको प्रेजेंटेशन बनाना है. और आपके प्रेजेंटेशन में क्या होना चाहिए? आपके प्रेजेंटेशन में ये होना चाहिए कि आपको इस बुक से आपको मेन क्या आपके हार्ट को टच किया, आपको बेस्ट क्या लगा, एंड what do you think would be its relevance in today's life? Where do you think like this book is really like what is the importance of this book? इन सब जो क्वेश्चंस हैं इनको आपको आंसर करना होंगे अपने इस प्रेजेंटेशन के थ्रू. सो आयुष इज राइटिंग कि आई डोंट हैव जर्नी होम. आयुष, नो नीड टू वरी, हमने आपका एसएसटीडब्ल्यू कैंप में आपको आई थिंक 2 प्रभुपाद बुक्स दिए हैं. So one is matchless gift and other maybe Raj Vidya or on the way to Krishna. So either of the books, दोनों में से कोई एक बुक को आप पढ़ सकते हैं, और उस बुक में आप जो उसका एसेंस है, जो बेस्ट पार्ट है, जो जिस्ट है, और क्या उसके सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट्स हैं, आप उन पे एक पीपीटी बना सकते हो, एंड यू कैन प्रेजेंट इट फॉर 10 minutes on 3rd May. So for this also we are having exciting prizes.
Actually, I was mentioning to all of them earlier also that it's a very good thing कि हम जो स्पिरिचुअल नॉलेज पढ़ते हैं उस पर हम थोड़ा रिफ्लेक्ट करें कैसे वो एप्लीकेबल है हमारे लाइफ में और कैसे वर्ल्ड अराउंड में, और अगर उसको हम अपने कुछ लाइफ में एप्लीकेशन में देख पाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है एक्चुअली. तो एनीवेज, ये जो एक्सरसाइज करने का पर्पस है प्रेजेंटेशन का, it's not that you have to just make a very good PPT and you have to just come out with many points. Not that. Whatever you are reading ना, you don't have to exert yourself also unnecessarily. जो भी आप अभी बुक रीडिंग्स कर रहे हैं ना स्पिरिचुअल बुक्स का, जैसे भी शुरू में दीपक ने कुछ अच्छे पॉइंट शेयर किए थे, आयुष ने भी कुछ पॉइंट शेयर किए थे ना, तो आप जो भी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ रहे हैं ना, स्पेसिफिकली जो आपके पास ये जो स्पिरिचुअल बुक्स हैं, मैचलेस गिफ्ट, ऑन द वे टू कृष्णा, राज विद्या, तो इनमें से आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं उसमें से जो भी कुछ कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स या कुछ अच्छे एग्जांपल्स आपको अच्छे लगे ना, आप उन कॉन्सेप्ट्स को बस प्रेजेंट करो. And that is this competition is meant for. It's a platform for all of you to share with all of us others what inspired you most in reading of your books. Okay, you don't have to come out with many points, or you don't have to cover up every book. It can be just 3-4 concepts only which you liked very much, and some examples which you find, or you can also explain them in terms of how it is relevant to your life or how it is relevant to the world around you. So that will help you to have a better contemplation and better understanding about the spiritual concepts which are there. That is the purpose, right, Gaurav? So it can be either from those spiritual books which you have, On the Way to Krishna, Matchless Gift, Raj Vidya, or it can be from the Journey Home. Journey Home is also very interesting book, very thrilling book. It's a true story. It is from my own spiritual guide from whom I take spiritual guidance. So very amazing personality is. तो उस बुक को भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत सारे वैल्यूएबल लेसन्स उन्होंने उसमें लिखे हैं. तो उसमें से भी कुछ अच्छे लेसन्स अगर आपको लगते हैं, जो आपको अच्छे लगे, जो आप शेयर करना चाहते हो, वो आप शेयर कर सकते हो. ओके, टोटल 10 मिनट के हिसाब से आपको एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है. करेक्ट ना गौरव? दिस इज द थिंग. हाँ, यस सर. आपको किसको पूछना है कुछ इससे रिलेटेड, देन यू कैन आस्क नाउ अबाउट दिस प्रेजेंटेशन. Again, to tell you, you don't have to come out with many points. Just come out with few points. And most important part we want to see is that what you were able to think about that point, how you are able to see its relevance in your life or in the in the life of others, and how nicely you are able to explain it to the others. That's the purpose. That will help you to also deepen your own understanding and will give you a forum to also become more expressive. This is the idea. Okay. Did you like this idea? आपको कुछ अलग से भी नहीं करना है इसमें. आप जो बुक रीडिंग करो उसी से आपको find out करना है. Did you find this idea interesting? Yes, sir. Okay. Yes, sir. ठीक है. Thank you. Anything else, Gaurav? As of now, this is it about the competition. Tomorrow then we are going to not meet again. Tomorrow we will have a break for all of you. I also have some other programs lined up for me tomorrow. We will be again meeting on the Monday. Okay. Monday we'll again meet together. Okay. Okay, Gaurav, then you can continue. I will just take some questions. Yes, Utkarsh has asked some question and Ayush has some question, right? Please tell, what are your questions? सर क्वेश्चन ये है कि अभी कहा कि सेशन में डिस्कस हो रहा था कि जब हमारा कोई सैनिक युद्ध में किसी को मारता है तो हमें परमवीर चक्र मिलता है. उसे पाप का भागी नहीं माना जाता है. करेक्ट. ये हम अपने पॉइंट, ये हम अब कंट्री वासी अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं. और यही काम सर जब हमारा विपक्षी करता है, जब हम लोगों को मारता है, तो उसकी सेना में भी कोई ना कोई होगा जो मेडल टाइप का जो उसे मिलता होगा. तो सर इसमें उसे पाप नहीं लगता होगा क्या? हम दोनों एक दूसरे को मार ही रहे हैं. तो इसमें हमारा कृष्णा, उनका अल्लाह जो भी है मालिक, तो इस सेंस में सर उसे पाप नहीं लगता होगा? दोनों पार्टी एक दूसरे को किलिंग कर रहे हैं अपनी. एक्चुअली आपने क्वेश्चन सही पूछा है वैसे, बट आई विल जस्ट टेल यू, सी हमने वो जो एग्जांपल बताने का कोशिश किया ना, वो था उस एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट वी आर डिस्कसिंग देयर, कि अगर आप अगर आप अपने खुद के सेक के लिए कुछ एक्टिविटी करते हो तो उसके लिए आपको उसका कुछ रिएक्शन सफर करना पड़ेगा, राइट? सोल्जर है, अगर वो अपने मर्जी से किसी को भी मार देता है तो उसको उसके लिए जेल जाना पड़ेगा. लेकिन अगर वही सोल्जर किसी अथॉरिटी के अंदर, किसी मास्टर के अंडर अगर काम करता है, अपने कमांडर के अंडर काम करता है और अपोजिट वाले लोगों को उड़ाता है, तो उसको अवार्ड दिया जाता है. सेम वे अगर हम भी अपनी एक्टिविटीज भगवान के अंडर में करेंगे, जो भगवान बोल रहे हैं हमको करने के लिए, तो हमको उसके लिए रिएक्शंस नहीं मिलने वाला है. फॉर एग्जांपल जैसे आप सब अभी चैंटिंग कर रहे हो, तो एक्चुअली क्या आपसे जो भी अभी अनविलिंगली जो किलिंग होती है ना, जैसे हम लोग चलते फिरते हैं तो बहुत से किलिंग हो जाती है, तो क्या भगवान उसका रिएक्शंस हटा देंगे हमारे लाइफ से, क्योंकि हम उनका मेन एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, तो उस एग्जाम्पल के लिए हमने उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, उस चीज को समझने के लिए हमने वो एग्जाम्पल यूज किया था. ठीक है,
So this is one thing. Now second thing is about actual में क्या होता है, देखो actual में क्या है, people are getting reactions, तो दोनों लोगों को रिएक्शन मिलने वाला है, यहाँ वाले को भी मिलने वाला है, वहाँ वाले को भी मिलने वाला है, क्योंकि देखो क्षत्रिय जब फाइट करते थे ना पहले टाइम में, तो उनका स्पिरिचुअल पर्पस हुआ करता था, धार्मिक पर्पस के कारण वो लड़ाई करते थे, इसलिए उन लोगों को क्या होता था कि कोई हारता था तो भी उसको स्वर्ग में जाने को मौका मिलता था, क्योंकि they was to fight for the sake of religion. लेकिन अभी आज के समय में तो सभी अधर्म के कारण ही लड़ते हैं, सब ग्रीडीनेस के कारण ही लड़ते हैं, यू नो, लाइक इंडिया इज नाउ वांटिंग टू हैव फाइट विद चाइना, चाइना इज वांटिंग टू फाइट विद इंडिया, व्हाई? बिकॉज़ both of them are greedy. China wants to expand its border, India wants to expand its border. So out of greed, because they're fighting because of the greed, and they're not using any Kshatriya principles, they're not following any Shastric principles. शास्त्र में प्रिंसिपल्स बता रखे कि लड़ाई कैसे करना चाहिए क्षत्रियस को भी ना, इसलिए दोनों को ही रिएक्शंस लगने वाला है अभी के सिचुएशन में. ओके, यस सर, यस. तो दो चीजें मैंने समझाने का कोशिश की आपको. पहली बात तो वो जो एग्जांपल हम ले रहे हैं उसको एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए वो एग्जांपल लिया था. बाकी अभी की जो सिचुएशन में सही बात है, दोनों को लगेगा, क्योंकि दोनों भी धार्मिक प्रिंसिपल के कारण लड़ाई नहीं कर रहे हैं. जब धार्मिक प्रिंसिपल के कारण लड़ाई होती है तो फिर उसमें रिएक्शंस नहीं लगता, उसमें दोनों को अच्छी गति मिलती है. जो क्षत्रिय जीते थे उनको भी अच्छी गति मिलती थी, जो हारते थे उनको भी अच्छी गति मिलती थी, ऐसा होता था. आया समझ में आपको? यस सर. ओके, आयुष, व्हाट इज योर क्वेश्चन? Sir, I understood that we get some good karma and some bad karma as a pocket money. So how is it? Is this your question, Ayush? थोड़ा सा आप इसको और अच्छे से elaborate कर पाओगे तो I can help you more better. Sir, you said that we get some good karma and some bad karma for this particular life, not as a whole. अच्छा हाँ, वो प्रारब्ध कर्म. So how is that decided? Yes sir. So how is that decided, that amount? So that's why there's a proper department dealing with it, you know. There are proper people who deal with that thing. किसको कितना देना है, किस लाइफ टाइम के लिए कितना देना है, वो सब प्रॉपर्ली होता है, प्रॉपर्ली एडजस्ट किया जाता है, यू नो. एंड जनरली प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल ये होता है कि इस तरीके से दिया जाता है ताकि व्यक्ति को कुछ सुख भी मिले और कुछ दुख भी मिले, एक बैलेंस दिया जाए ताकि क्या है ना, व्यक्ति बहुत परेशान भी ना हो, उस सेंस में उस तरीके का बैलेंस किया जाता है. और एग्जैक्टली कौन करता है, ये सब करते हैं हायर एजेंसीज जो है ना मटेरियल नेचर में, जो यमराज हैं एंड बाकी सब जो लोग हैं. प्रकृति जो होती है मटेरियल नेचर, दुर्गा जी इज द वन जो कि हमको अलग अलग चीजें सफरिंग्स देती हैं इस वर्ल्ड में. तो जो दुर्गा जी है उनके अरेंजमेंट से ये सब होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे नेचुरल कैलामिटीज जो आती हैं वो सभी दुर्गा जी अरेंज करती है हमारे लाइफ में. तो ये हायर अथॉरिटीज के द्वारा होता है हमारे लाइफ में. ओके, एग्जैक्टली कैसे होता है दिया है शास्त्रार्थ में एग्जैक्टली, बट आई थिंक उतना डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है, बट इतना समझ सकते हैं हमारे लेवल पे कि एक कोई ना कोई इसको कंट्रोल कर रहा है. ऐसे एम्बिगुअसली नहीं हो रहा है ये. इट्स नॉट एम्बिगुअसली नहीं होता, ये होता है प्रॉपर अरेंजमेंट्स के थ्रू होता है. ओके ओके सर. ओके सर. और कोई क्वेश्चन? ओके देन, थैंक यू सो मच. Let us continue. I also have another session from 12 o'clock. Already start होने वाला है वो. So thank you for your good participation. Let us meet on the we'll meet again on the Monday, है ना? With our another topic. Okay. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, sir.